السلام علیکم. یوٹیوب چینل احمد سہیب پر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج کی جو میری معزز شخصیت جناب احمد حسن علوی صاحب ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف پاکستان. تو مزید وقت کو ضائع کیے بغیر جانتے ہیں ان سے ہسٹری آف پاکستان کے متعلق. السلام علیکم سر جی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جی سر جی. جی, جب ہم ہسٹری آف پاکستان کی بات کرتے ہیں اس کے بہت سے حصے ہیں. صحیح. تو میں صرف ایک حصے کا ذکر کروں گا کہ ہسٹری آف اس پاکستان میں علماء کا کردار. صحیح بات ہے. علماء نے کیا کردار ادا کیا. اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو 1857 کی جنگ آزادی سے علماء نے مختلف انداز میں اپنا حصہ اس آزادی کی تحریک میں ڈالا. تحریک خلافت کہہ لیں آپ. تحریک خلافت تو اور چیز تھی. اچھا. بہرحال وہ بھی آزادی کی بنیاد بنی. صحیح. تحریک خلافت کے روحر وہاں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی تھے. ان کا لب لباب یہ تھا کہ خلافت کو بحال کیا جائے. یعنی عثمانی خلافت کو جو ختم کیا گیا, جو اس پہ قبضہ کر لیا گیا, اس پہ لوازان کا معاہدہ مسلط کر دیا گیا. اور لوازان کے تحت جو ہے 100 سال تک خلافت مکمل طور پہ مفلوج کر دی گئی 2023 اس کی بحالی کی باتیں کرتے تھے. تو جتنے بھی ترکی کی ایسڈ تھے اس کا یعنی منجمد سرمایہ وہ تمام منجمد کر دیا گیا کہ اس سرمایہ کو ترکی 100 سال تک یوز نہیں کر سکتا اور اپنی کوئی دفاعی یا فوجی چیز نہیں بنا سکتا. جیسے اب پاکستان بنا رہا ہے حطف و لطف 2 یا شاہین یا میزائل بنا رہا ہے, ایٹم بم بنا رہا ہے. تو آپ نے اپنی آرمی کے لیے ایمونیشن کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنانی. صحیح. باقی آپ اپنی ملک کی ترقی کے لیے یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. صحیح. تو خلافت تاریخ خلافت تو ایک الگ چیز تھی. وہیں سے ایک علماء کا ایک گروپ اٹھا جس میں اس کے خاص طور پہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ تحریک خلافت کے دنوں میں اور آزادی کی تاریخ میں تحصیل منشن آباد نے بھی مولانا غلام قادر بٹو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا رول ادا کیا. ماشاءاللہ. اور یہ تحریک ریشمی رومال کے بھی سرخیل تھے. صحیح. اور تحریک ریشمی رومال کی یہاں سے بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں محمد پور سارا سے اور منشن آباد سے. صحیح. تو اس کام کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں مولانا عبید اللہ سندھی اور حافظ ضامن شہید نے ایک خاص رول ادا کیا. صحیح. اور پریکٹیکلی جدوجہد کا آغاز کیا. صحیح. تو جہاں تک صرف دہلی کی بات ہے, ایک ہسٹری کے مطابق صرف دہلی میں 4000 مدارس تھے. 4000 مدارس دہلی شہر میں تھے, جس میں علماء بھی ہوں گے, طلباء بھی ہوں گے. اور ایک انگریز مورخ اس چیز کے اوپر لکھتا ہے کہ میں نے کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس پہ کسی عالم کی ٹنگی ہوئی لاش نہ ہو, یا اس کی جلی ہوئی لاش یا اس کی توپ کے دہانے کھڑی ہوئی لاش کو نہ دیکھا جا سکتا. اللہ اکبر. یعنی کوئی دن ایسا نہیں جس دن علماء کا خون بہایا نہ گیا ہو اور علماء نے ہنستے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد نہ کی ہو. تو یہاں تک تو یہ ان کی ایک پریکٹیکل قربانی تھی. اور اس کے بعد علماء نے مل کے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی اور اس میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا. بڑا مشہور واقعہ ہے یہ, کراچی کے خالق دینہ ہال میں یہ کیس زیر سماعت تھا. مشہور بندر روڈ کے اوپر ہے یہ خالق دینہ ہال. تو اس میں انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے کہا کہ حسین احمد تو نے یہ فکرہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا وہ بات تو جو میں نے کی سو کی, میں اب ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ یہ کفار کی حکومت ہے اور اس میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. تو ان کے یہ جواب سن کے مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے اور کہا کہ سید تیرا
पाँव चूमने को जी चाहता है तो उन्हें आज सैयद होने की लाज रख ली। ये मुल्ला मोहम्मद अली के अल्फाज थे। क्या बात है। तो कि आज तूने सैयद होने की लाज रख ली, जिस पे उनको जेल दे दी गई। और यही वो मौका है जिस मौके पे मौलाना अबादुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क छोड़ के मुख्तलिफ ममालिक को चले गए, अफ़गानिस्तान में चले गए। और इस तहरीक का मकसद ये था कि बैरूनी मदद लेके हिंदुस्तान में हमला कराया जाए और यानी अंग्रेज़ों को इससे निकाला जाए। सही। और ये इतनी बड़ी तारीख थी, तारीख रेशमी रुमाल, इसकी मैं ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाता। सिर्फ एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है W. हंटर, उसके अल्फाज मैं बयान कर देता हूँ, वहाँ से आपको इसकी शिद्दत का अंदाज़े का पता चलेगा कि W. हंटर ने ये अल्फाज कहे थे कि अगर रेशमी रुमाल कामयाब हो जाती तो अंग्रेज़ों को बहरा हिंद ने भी पनाह नहीं देनी थी, यानी हमारे पास सिवाय मौत के कोई चारा नहीं था। ये इतनी बड़ी तारीख थी। और हमें ये फ़ख्र है कि उस इलाके में तहसील मिंचनाबाद में और मोहम्मदपुर हुसैन सारा ने और मौलाना ग़ुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह ने उस तारीख में एक अहम तरीन रोल अदा किया। बेशक। जहाँ तक मौलाना अबादुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, कहलाने को तो वो सिंधी कहलाते थे, लेकिन बुनियादी तौर पे वो सियालकोट के एक सिख घराने में पैदा हुए। मेरा ख़्याल है 8वीं क्लास में थे, 13-14 साल की उम्र में, कि एक किताब का उन्होंने मुताला किया, अहवाल आखरत, पंजाबी ज़बान की किताब थी, जिससे उनकी काया पलट गई और उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, सीने से लगा लिया। और उनके घर वाले और उनकी ख़ानदान वाले उनको ढूंढते रहे और फिर वो वहाँ से होते हुए सिंध में अमरोट शरीफ चले गए। कुछ अरसा अमरोट में रहे। वहाँ से मौलाना अमरोटी ने उनकी तरबियत की। वहाँ भी उनकी जब वालदा गई तो उन्होंने वालदा को मिलने से इनकार कर दिया। मौलाना अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वालदा वालदा होती है, खा वो काफिर भी हो, उसकी इज़्ज़त तुम्हें करनी पड़ेगी। अबैदुल्लाह, उनके सामने तुम्हें जाना पड़ेगा और एक बार उनको मिल लो। फिर मौलाना जो है वो तशरीफ़ ले गए दारुल उलूम देवबंद में। सही। वहाँ से फ़ारिगुल तहसील हुए। तो उनकी तबीयत में एक अजीब तूफ़ान था, यानी वो नंगे सर अमूमन नमाज़ पढ़ते थे, नंगे सर रहते थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनको अपनी ये कह लें कि क़ुव्वत गोयाई के ऊपर बहुत ज़्यादा घुमंड था, बल्कि उनको लोग अबुल कलाम कहते ही इसलिए थे कि इस बंदे को के ऊपर कलाम ख़त्म है, यानी गुफ्तगू का फ़न इसके ऊपर ख़त्म है, कोई बंदा इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो जब वो खड़े होकर इकट्ठे सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे तो अबुल कलाम ने ऐसे बाजू से पकड़ के कहा कि मौलाना अबैदुल्लाह, तुम मौलाना हो, अपने सर पे टोपी रखा करो। अबैदुल्लाह सिंधी को कहा तो मौलाना सिंधी ने बेअख्तियार कहा कि मौलाना मुझे ये बताइए, क्या ग़ुलाम को ये हक़ हासिल है कि सर पे टोपी रखे? मेरी टोपी उसी दिन उतर गई थी जिस दिन दिल्ली के लाल किले पे अंग्रेज़ का परचम लहराया था, और जब तक मैं ये वो परचम उतार नहीं लेता और इस्लाम का परचम लहरा नहीं देता, मैं अपने सर पे टोपी नहीं रखूँगा। तो इस सिलसिले में उलमा का एक बहुत बड़ा किरदार है। और उसके बाद आखिरी दौर में जब मोहम्मद अली जिन्ना इस तारीख के लिए आए, 1906 में ग़ालिबन का मुस्लिम लीग बनी थी, इसमें ईस्ट पाकिस्तान में, यानी बंगाल में। मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान, नवाब वकार उल मल्क, नवाब मोहसिन उल मल्क, यानी उस दौर के जितने जागीरदार थे, वडेरे थे, वो सारे इकट्ठे हुए। और आप ये देखें कि आज मुस्लिम लीग जो ये टाइटल लेने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान के हम खालिक हैं, पाकिस्तान हमने बनाया है। मुस्लिम लीग कोई भी मुस्लिम लीग हो, अच्छा, कोई भी नाम यूज़, कोई भी नाम हो, तो इस मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो लिखा गया उसका पहला हिस्सा क्या था? अंग्रेज़ हुकूमत की वफ़ादारी करना। अंग्रेज़ हुकूमत की वफ़ादारी करते हुए अपने हकूक़ को हासिल करना। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये उस दौर में अंग्रेज़ के मराहत याफ्ता तबका, नवाब, सर और बहादुर मल्क और इस किस्म के जिनको खिताबात मिले हुए थे, वो इस तारीख में नुमायाँ थे। जब दिल्ली में
मौलाना के ऊपर केस चला, ये क्या नाम था उनके बुजुर्ग का, मुझे अभी नाम उनका ज़हन से निकल गया। खैर, अच्छा। तो यानी बड़े बड़े मुस्लिम लीगी उनसे मिलने से कतराने लग गए कि अगर इनसे मिलेंगे तो अंग्रेज़ों को पता चल गया जाएगा कि हम एक बागी से मिल रहे हैं। 1937 के जब इलेक्शन हुए तो पूरे पंजाब से यानी ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब को मिला के मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीटें मिली 1937 में। 1937 के इलेक्शन में। उन 2 सीटों में से भी एक बाद में मुनहरफ होके लोटा बन के, क्योंकि लोटा बनना मुस्लिम लीगियों की पुरानी आदत है, तो लोटा बन के वो यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। और यूनिस्ट पार्टी के खिजर या टिवाणा जो है वो उस इलेक्शन के नतीजे में पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो करार पाए। ये ख़ास तौर पे आप शाही किला लाहौर जाएं तो शाही किला के बिल्कुल दामन उनकी कब्र है सीढ़ियों के पास, बिल्कुल है, खिजर या टिवाणा की। तो ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सही। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त फिर ख़ास तौर पे उलमाए हक मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, सही। इन बुज़ुर्गों ने फिर कायद-ए-आज़म का साथ दिया। सही। और वोट किसको दोगे? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे मतलब जो है एक स्लोगन बन ये गया। एक स्लोगन बने। और उस स्लोगन का रिज़ल्ट ये हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वेस्ट पाकिस्तान के बनने के बाद जो पाकिस्तान की परचम कुशाई करवाई और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी से करवाई, सही। और उनके छोटे भाई ज़फ़र अहमद उस्मानी से ईस्ट पाकिस्तान की परचम कुशाई करवाई। इन दोनों भाइयों ने पाकिस्तान की परचम कुशाई सबसे पहले की। और बाद में करारदाद पाकिस्तान, जो इस वक्त हमारे सेकुलर तबका को, सेकुलर सियासतदानों के गले में वो हड्डी बन के चुभ रही है। मिसाल के तौर पर वो 1948 में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की करारदाद मकसद पेश की थी कि इस करारदाद के तहत इस मुल्क को इस मकसद के लिए बनाया गया है। सही। तो मकसद तो इस्लाम है, लेकिन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनेगा। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाएगा। सही, मतलब ये शब्बीर अहमद उस्मानी साहब की सारी मेहनत है। हाँ, ये सारी उस वक्त 1948 में ये करारदाद मकसद लिखी गई। तो यही वजह कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो आइन तो बना लेती है, लेकिन करारदाद मकसद हर आइन का बुनियादी हिस्सा है। सही। आप उससे इनाराफ नहीं कर सकते, उससे बाहर नहीं। तो इस तरफ क्यों ज़्यादा रुझान नहीं दिया जाता? ये उस करारदाद मकासद की इतनी वैल्यू क्यों नहीं बनाई जाती? नहीं, मसला बात फिर वही आ जाती है कि उस दौर में, किसी दौर में जो है, जब ये नवाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत था, तो उस वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने, जिसके जस्टिस तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जस्टिस तकी उस्मानी मदज़िल्लवाली ने एक फ़ैसला दिया सूद के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे आर्डर दे के अभी तक पाकिस्तान का सूदी निज़ाम एक स्टे आर्डर पे चल रहा है। अच्छा, एक स्टे आर्डर के ऊपर आप है अभी तक 20, 22, 23 साल तो हो गए। जी है। तो ये है, ये चूँकि चंद एक मखसूस ख़ानदान जिनको अंग्रेज़ों की तरफ से मराहत मिली थी, उनके बड़ों ने अंग्रेज़ों की चाकरी की थी, उनके घोड़ों को खरखरा किया था, उनको नौजवान फराहम किए थे घोड़ों के ऊपर, उनको फिर जागीरें मिली, तो उन्हीं की औलादें, उन्हीं के पोतरे दोतरे इस वक्त पाकिस्तान आगे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चल रही है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों में। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद के हालात की बात करें, नॉर्मली तो हर बंदा ही जानता है। अगर आप सिंस 50 to 78 तक ज़िया की अगर बात करें, उसके शहीद होने तक की, तो उसको अगर आप थोड़ा सा समेट दें तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे मेरी बात सुन के। मैं ऐसी बात करने वाला हूँ कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिस मुल्क में एक अंग्रेज़ नर्स ने हुकूमत की है।
हाँ, ये आपके लिए एक नई बात होगी। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम गुलाम मोहम्मद था। सही। क़ायद आज़म के बाद, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। उनको भी मेरी तरह फालिज हो गया था। फालिज होने की वजह से उनके हाथ जो है वो नहीं चल सकते थे, लिहाजा उनकी जो नर्स थी, वो एक स्वीडन की खातून थी, सारे आर्डर जो तमाम सेक्रेटरी आके उसको जवाब दे थे, वो आगे से सबको आर्डर पास करती। यू मीन टू से दैट कि वो एज ए एक्टिंग काम कर रही थी? वो एज ए एक्टिंग गवर्नर जनरल थी, यानी वो उसकी बिहाफ पे, गुलाम मोहम्मद की बिहाफ पे तमाम आर्डर देती थी। अच्छा। तो गुलाम मोहम्मद तो इस काबिल भी नहीं था कि साइन कर सके। और आगे फिर ऐसे लोगों का अल्लाह पाक ने अंजाम भी दिखाया, काश के ये लोग इस अंजाम को देख लेते। उसके मरने के बाद बेटा उसका अमेरिका में था, तो उसके आने तक उसको डेड बॉडी को गोरा कब्रिस्तान में जो है वो दफन किया गया अमानतन, कि जब बेटा आएगा तो फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जब उसकी कब्र कुशाई की गई तो कहते हैं कि एक सांप था जो उसकी छाती के ऊपर बैठा था, उसको गोलियां मारी गई सांप को पिस्टल से, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ना हुआ। उसके ऊपर स्प्रे किए गए लेकिन उस सांप के ऊपर कोई असर ना हुआ। लेकिन बलाखिर वो सिले में दोबारा रख के गुलाम मोहम्मद को उधर ही गोरा कब्रिस्तान में ही दफन, आज भी दफन है गुलाम मोहम्मद, अकेला मुसलमान गोरों के कब्रिस्तान में है। क्या वजह थी इसकी? क्या उसके काम थे ऐसे? यही देख लें कि एक नज़रियाती मुल्क था, और इस नज़रियाती मुल्क के अंदर एक बंदे ने अपनी हुकूमत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए कितनी हुकूमतों के वज़ीर आज़मों की उसने छुट्टी कराई, और हत्ता कि जब बीमार हो गया वो इस काबिल भी ना रहा, फालिज हो गया, वो इस काबिल भी ना रहा कि वो कुछ कर सके, तब भी वो इक़्तिदार से चिमटा रहा। वो लेडी नर्स जो है वो तमाम सेक्रेटरियों से जवाब लेती थी कि आप मुझे जवाब दें कि भी आपकी क्या रिपोर्ट है, आपकी क्या रिपोर्ट है, मैंने जाके गुलाम मोहम्मद साहब को देनी है। फिर वहाँ से मुमकिन है जो भी आर्डर उसके जहन में आता था वो आके उनको दे देती थी कि आपने ये करना है, आपने ये करना है,